Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of English language. Today we are going to continue our discussion on the tenses. This is a lecture number 5 of the series tenses. उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा and you are enjoying the lectures and hopefully you are learning something which haven't been learned before. और अगर आपने लर्न किया है बहुत ही बेसिक से लेक्चर लग रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए हमारी इसकी एडवांस सीरीज़ का, तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स मोर इन द फ्यूचर. So today the target or the learning objectives is said to be as a present continuous tense. What we need to do, we need to cover the all aspects of a present continuous tense. We will try to cover the present continuous tense in the one lecture or maybe in the two lecture. As you are familiar, if you are a regular viewer of our lectures, so you may be familiar and acquainted that we have covered the present indefinite tense into the 4 lecture series. Why we have done this? Because this was the बेसिक एंड द फंडामेंटल ऑफ अ टेंस एंड उम्मीद है मुझे कि आपने उसको बना लिया होगा. सही है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि वी आर कॉन्वर्सेटिंग इन इंग्लिश ओनली, तो उसके लिए भी करेंगे, लेकिन आपके समझाने के लिए आपकी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव भाषा में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. व्हाट इज़ बीइंग देयर इन द कॉन्टिन्यूस टेंस. ऑफ कोर्स वी आर डिवाइडिंग द कॉन्टिन्यूस टेंस इनटू द 4 क्लासिफिकेशन. व्हाट आर दीज 4 क्लासिफिकेशन? वन इज़ अ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस. सेकंड इज़ द Yes, speak up please. Second is the interrogative of a present continuous tense. Third is the negative, and fourth one is the interrogative. So in that way we are trying to cover of a 4 aspects of a present continuous tense. Again, as usual, this lecture also includes the forms of verb. I believe that these forms of verb will getting difficult for you day by day, but difficulty में तो मज़ा है यार. अगर डिफ़िकल्टी नहीं फेस करेंगे तो काम कैसे लर्न होगा. इफ़ यू आर लर्निंग, आसान तरीन जो बात ये है कि यू ऑलवेज रिमेंबर ABCD ABCD ABCD. तो ABCD के बाद तो ख़त्म हो गया, तो आसान भी हो गया और काम भी कुछ नहीं हो रहा है, काम भी कुछ कवर नहीं हो रहा है इसके अंदर. ठीक है, तो असल चीज़ ये कि मुश्किलों को ही तो चैलेंज करनी है. और क्या शेर था वो, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. तो बस इतनी मुश्किलें झेल लो जो तुम पे आसानी की तरफ ले जाएँ, आसानी की तरफ उसको गो थ्रू करें. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर बेटा, एंड इन द लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्टिन्यूस टेंस. सो लेट्स जस्ट बिगिन आवर लेक्चर. अच्छा, कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं वो पहले की मौजूद हैं ना, हमारे पास पहले की मौजूद हैं. क्या चीज़ें थी हमारे पास जो हमने पीछे रिकैप की थी, क्विकली देखते चलते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें. ये 3 टाइप्स थी, इसको हमने कवर किया था. इसको जूम. Okay, so this was the thing which we have done, and then WH questions and auxiliary verb we have covered, and we remember that in every interrogative and the negative there should be a auxiliary or the helping verb. So we are going to use this key concept in this lecture as well. इस lecture के अंदर भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं. और इसके आगे हमारे पास ये present indefinite हमने cover किया था. We have learned the how to make a affirmative sentences, then the negative one and the interrogative one, and furthermore in addition to these 3 we also learned how we are going to create, develop or transform the interrogative questions of a present indefinite tense. So this is the present continuous tense layout. This is the first glance. Don't worry about if you are not getting any of the point, no problem at all. We will try to develop the concept step by step, but before we go this one we have to worry about that specific slide, if you remember this one. So let's continue our lecture. Present and continuous. तो जुमले के अंदर आखिर में क्या आना चाहिए? द आखिरी थिंग इज द कि है हूँ. आई के साथ, मैं के साथ हूँ आ जाएगा, बाकी है प्लूरल के साथ है, और है जो है वो सिंगुलर के साथ है. लेकिन उससे पहले यहाँ इंडेफिनिट में ताती ते आता था, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई, जल्दी से बता दो मुझे. रहा, रही और रहे. क्या आएगा हमारे पास? रहा, रही, रहे. ये हमारे जुमले की पहचान है. और साथ में अगर है लगा हुआ है तो ये 2 जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, दिस विल गिव यू द प्रेजेंट ऑफ कॉन्टिन्यूस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो खाना खा रहा है, रहा है. समझ में आई बात? ये तो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस. वो गाना गा रही थी रही कंटिन्यूस, और थी पास्ट हो गया. तो इस तरह से आपने जाना है, जो शुरू से मैं हर दिन बता रहा हूँ. दिस इज द मास्टर स्लाइड, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मास्टर स्लाइड शुड बी लर्न बाय हार्ट. इफ यू हैवंट लर्न दिस मास्टर स्लाइड येट, तो इट मीन्स कि यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द ग्रामर. सो हाउ यू कैन इम्प्रूव द ग्रामर? बाई आपकी नेटिव लैंग्वेज में यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टेंस इज ऑल अबाउट, कौन से ज़माने में बात हो रही, देन यू कैन बी एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू द स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट अवर दैट वन.
Okay, this is a present continuous tense. The simple structure is that nothing but what we have do the subject, we have placed the subject. ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास आना चाहिए. सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए. सब्जेक्ट के बाद जल्दी बोलो भाई, ये माउस कहाँ भागा जा रहा है. सब्जेक्ट के बाद क्या चीज़ चाहिए हमको? नहीं बता रहे तुम लोग. हेल्पिंग वर्ब चाहिए. क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब चाहिए. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? ज़रा सा गौर कर लें आप लोग. इज़, एम या आर हैं. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और किसके साथ है? आईएनजी के साथ है. और साथ में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लगते हैं. मैं नॉर्मली इसको फॉलो करता हूँ कि अदर वर्ड्स. तो पहले मैं क्यों नहीं बताया? इसलिए कि वो आपका बेसिक था. हम सुनते तो ये आ रहे हैं सर पता नहीं ठीक पढ़ा रहे कि नहीं. तो ये अब आप ओ को अदर वर्ड्स, इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा के इसको ओ का नाम दे दिया अदर वर्ड्स का, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और बाकी भी दूसरी. वो पैदल चल रहा था तो पैदल ऑन फुट, ऑन और फुट प्रीपोजिशन भी आ गया, फुट भी आ गया, नाउन भी आ गया. तो वो सब उसके अंदर अदर वर्ड्स के अंदर हम ऐड करते चले जाएंगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल है आई. आई का मतलब मैं, और आई के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एम. एम आ गया. ईट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी के साथ आएगी ईटिंग. और साथ में क्या आ रहा है? पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा इज अदर वर्ड. दिस इज अ सिंपल अफर्मेटिव ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा. इसको बोर्ड पे भी ज़रा सा करते हैं. जुमले की पहचान देख लें, जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही है और आता है. सही है, यहाँ तक आएगा आपके पास और ये आपको आसानी से क्लियर हो जाए. पीछे चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो आज कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर्स यानी कि नेगेटिव और अफर्मेटिव हम आज कवर कर लें आज के लेक्चर में. देन वी विल कंटिन्यू विद द इंटेल. तो इस तरह से 2 लेक्चर की सीरीज हो जाएगी. और आगे अगर आपने बहुत ही कॉम्पिटेंसी दिखाई तो आई विल ट्राई टू स्क्वीज ऑल द लेक्चर इन द सिंगल लेक्चर, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए. यू डोंट बी बॉदर योरसेल्फ टू सी अगेन टू वॉच अगेन एंड अगेन द डिफरेंट लेक्चर्स. एंड यू आई लाइक मी यू माइट बी हेटिंग विद द वेटिंग, है ना? वेट के साथ आप हेट करते होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा टाइम जाया नहीं करते, बोर्ड पर चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आज के. ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक बार दोबारा देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो हमने ऑलरेडी स्लाइड्स पे देखा. उसके बाद मेकिंग ऑफ अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और देन मेकिंग ऑफ अ नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो पहले सिंपली हम अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं. फॉर्मूला देख लेते हैं. नॉर्मली हमारे पास क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का? ठीक है, तो प्रेजेंट का रहा, रही, तो ये तो आपको पहचान तो आ गई ना. कंटिन्यूस होगा तो रहा, रही, रहे आ रहा होगा, वहां पे भी लिखा हुआ था. और इसमें क्या आ रहा होगा? प्रेजेंट का होगा तो है, और अगर सिंगल फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो हूं आ रहा होगा. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. देखो मैं बार बार हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में बिठा लेंगे. हेल्पिंग वर्ब लाजमी आएगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अलावा सब में आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी? आईएनजी के साथ आएगी, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट होंगे. अभी हमने इसकी डिस्कशन वीडियो के शुरू में देखी तो हमें याद रहेगी ये बात. ठीक है, समझ में आने वाली. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? 3 किस्म के हैं हमारे पास. आई है, एम है, सॉरी एम है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आएगा. उसके बाद ये क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, और ये हमारे पास आर आ जाएगा. ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल और इंडिविजुअल फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे पास ये आ जाएगा. आप चाहें तो याद भी कर लें. फर्स्ट पर्सन के लिए आपके पास एम आ रहा है, सिंगुलर के लिए एस और प्लूरल के लिए आर आ रहा है. इनमें से कोई सा भी एज पर द सब्जेक्ट हम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. बाकी हमारे पास काम बिल्कुल आसान है. ग्रामर में वर्ब की फॉर्म्स हम डेवलप कर रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे वो खांस रहा है. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामर के वो वर्ड्स लें जो हमारे पास उस लिस्ट में नहीं थी, ताकि हर तरफ से लर्निंग होती जाए. वो खांस रहा है. ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है. खांसने को कफिंग कहते हैं, कफ कहते हैं एक्चुअली. कफ, कफ, कफ. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म COUGH, कफ. तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? अफर्मेटिव हमने पहले पहचान देखी, रहा और है. रहा बता रहा है कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और ये बता रहा है प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया. 2 बातें थी. और खांसने को हमने देख लिया यहाँ पे, तो खांस रहा है तो वर्ब हमारा खांसना हो गया यहाँ पे. तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट रहा, सिंगुलर लग रहा है, अलिफ है. रहे होता तो बहुत सारे लोग थे शायद कोर्स में गाने में खांस रहे होते, लेकिन यहाँ पे अलिफ है, सिंगुलर है, तो इसको हमने क्या दिया? ही. अब ही सिंगुलर है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. यहाँ पे एम आएगा, एस आएगा कि आर आएगा. ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो लिहाजा क्या आ जाएगा?
इज आ जाएगा, एन तो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है। ही इज, और खांसने को क्या बताया अभी मैंने, कफिंग, कफ और साथ में आई एन जी लगा दी, इस कफिंग। आगे कुछ नहीं पता कि क्या दे रहा है, तो जुमले का सेंटेंस हमारा पूरा मुकम्मल हो गया। इजी हो गया ये बात, ही इज कफिंग, यहाँ तक हमने बात कर ली। अच्छा वो खांस रहा है, और कोई जुमला अगर हम ले लें तो वो भी हमारे पास आ जाएगा कि लेट सपोज हम वर्जिश कर रहे हैं, हम वर्जिश कर रहे हैं, और अच्छा थोड़ा सा हम जिम में वर्जिश कर रहे हैं, ठीक है, जिम में, जब मैं नहीं बोलिएगा इसमें जिम पर लिख लीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज गाह उर्दू में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बात हो गई, हम वर्जिश कर रहे हैं, तो वर्जिश करने को क्या कहते हैं, वी आर एक्सरसाइजिंग। एक तो ये जुमला होगा, मैं आपको उसमें कुछ और चीजें भी बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, पहले देख लीजिएगा। वी के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हम एक तो रहे और हैं, तो कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम को क्या कहते हैं, वी, और उसके बाद वी है प्लूरल है, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, वी आर और एक्सरसाइजिंग, ठीक है। एक तो ये जुमला हो सकता है इसका, एक्सरसाइजिंग, ठीक है। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, वी आर एक्सरसाइजिंग हो गया, ठीक है। ये आपने लिख लिया एक्सरसाइज और आई एन जी, वी आर एक्सरसाइजिंग, ये भी हो गया। लेकिन इसको अल्टरनेटिवली देखिए, इम्तिहान देने को, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो नॉर्मली देने को क्या कहते हैं, हम गिव कहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम टेक एग्जाम कहते हैं। ये जुमला या वोकैबुलरी याद कर लें, आप कह रहे हैं इम्तिहान देना, इम्तिहान देने को क्या कहेंगे, टेक एग्जाम। उस्ताद इम्तिहान ले रहा है तो टेक एग्जाम नहीं होगा, वहाँ पे गिव एग्जाम होगा, उस्ताद ने पर्चा दिया, क्योंकि एग्जाम हल करने की बात है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका अल्टरनेट क्या बन सकता है, वी आर टेकिंग एक्सरसाइज, यानी हम कर क्या रहे हैं, टेकिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पे उसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है, वो जरा सा हम समझते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, टेक, और एक्सरसाइज एज अ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, जबकि यहाँ पे एक्सरसाइज एज अ वर्ब भी यूज होता है, वी आर फैमिलियर विद। आगे हमारी लेक्चर सीरीज में एक आ रहा है जीरन यूज, कौन सा यूज आ रहा है, जीरन, पंजाबी वाला नहीं है ये भाई, ये इंग्लिश वाला है, जीरन यूज। तो ये जीरन यूज में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन और वर्ब कैसे आपस में एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, बाय एडिंग द आईएनजी इन द लिस्ट ऑफ अ नाउन, सॉरी वर्ब। तो ये हम आगे चल के देखेंगे, इसको गो थ्रू करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दो ट्रांसलेशन समझ में आई आपको। अब इसी तरीके से सैंपल ट्रांसलेशन लिखी हुई, इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, वो गेंद फेंक रहा है, वो गेंद फेंक रहा है, वो और रहा और रहे को देख लेते पहले, रहा और ये, तो सिंगुलर और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, सिंगुलर और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो वो यानी कि ही, और ही के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, ही इज थ्रोइंग, THROWING, throwing, he is throwing the ball, ठीक है। अभी इस डिबेट में नहीं जाना है कि यहाँ पे द आएगा कि आ आएगा, वो आर्टिकल जब क्लियर होंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा इस throwing the ball, वो गेंद फेंक रहा है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, दूध उबल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि दूध उबलने को बॉयल ओवर कहते हैं, बॉयल ओवर, ठीक है। तो दूध उबल रहा है, दूध को क्या कहते हो, मिल्क, सिंगुलर में लेंगे इसको, मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, ठीक है, दूध उबल रहा है। बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी के लिए हमने लास्ट टाइम विकेट पढ़ी थी ड्रिजल, तो लिहाजा इट इज ड्रिजल, आईएनजी के साथ, ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे, यहाँ से नहीं वाले आ गए, इसको हम देखते हैं, ये वाले अब्बा जान वाला जो है ये हमें अफर्मेटिव में लग रहा है, अब्बा जान अखबार पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, अब्बा जान को क्या बोलते हैं भाई, फादर। अब्बा जान को अगर डैड बोलते हो तो मत बोला करो यार, ये दोनों के काम है। डैड आपके अच्छे खासे अलाइव बाप को डैड बोल देना अच्छी बात नहीं है, अब्बा जान, अब्बा, हुजूर, अब्बू, बाबा, दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू यूज, सही है, दिस इज सजेशन, नो ऑफेंस। तो फादर क्या हो गया, अखबार पढ़े, फादर के साथ सिंगुलर है तो इज, और अखबार पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग, क्या कहते हैं, रीड, आईएनजी, रीडिंग ऑन न्यूज़पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ और दा की डिबेट में नहीं जाना है, कोई खास अखबार वो हम पढ़ेंगे यार, अभी इधर कंफ्यूज नहीं करते। अभी जो समझने की बात हो रही है वो इस टेंस को समझने हैं कि यहाँ पे ये क्या क्या चीजें आ रही। वो सर्दी से कांप रहा है, चलो भाई कपवा दो उसको, वो सर्दी से कांप रहा है, ही सिंगुलर है ना, रहा और है को देखा, सबसे पहले जो देखने को कह रहा हूँ वही देख रहा है, ही इज, कांपने को क्या कहते हैं, शिवरिंग, ही इज शिवर, शिवरिंग आईएनजी के साथ, तो ही इज शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड,
सर्दी से कांप रहा है वो, तो क्या हो गया, फ्रॉम विंटर भी लोग कह देते हैं, जो दिल चाहे कहिए भाई आपका, लेकिन जो करेक्शन है वो ये शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड, वो सर्दी से कांप रहा है, क्योंकि ये बुखार वाली सर्दी हिले जो गर्मी में भी लग जाती है, सही है, तो इसको हम कोल्ड ही यूज करेंगे, वरना आपकी मर्जी, जो दिल चाहे लिख दीजिए आगे के, हमें उसका मसला नहीं है, हमारा मसला है दरअसल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, इज और शिवरिंग के साथ आईएनजी लगाए, शिवर के साथ के नहीं लगाए, दीज आर द थिंग्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और कोई जुमले अगर एक आध आपके जहन में आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं साथ साथ, और एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको फाइल दी भी होगी, और फाइल के आपने डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक दिया हुआ है, आपने अपना होमवर्क करके उसमें जमा कराना है, और कोई सवाल है तो उसमें फीडबैक का एक सेक्शन है, उस फीडबैक सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो अंडे उबाल रही है, क्या बनेगा इसका, चलो ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, उबाल रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे लड़की की तो बात ही नहीं की जाती है, लड़के सर बड़े बाइस्ड हैं, फीमेल ओरिएंटेड नहीं है यहाँ पे, तो आई एम नॉट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड गाय, लेकिन ये कि तफाके के जुमले ऐसे सारे बन रहे होते हैं। तो वो अंडे उबाल रही है, क्या बनेगा, रही आ रहा है और है नजर आ रहा है, तो सिंगुलर और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये हमारे पास। तो शी इज, और अंडे उबालने का कहते हैं बॉइलिंग, शी इज बॉइलिंग द एग, और अंडे है तो एग्स हो जाए, शी इज बॉइलिंग द एग्स, सही होगी बात ये। इसी तरीके से और कोई जुमला हो गया, और कोई बोलो, किताब, ये किताब हाथों हाथ बिक रही है, क्या जुमला है, ये किताब हाथों हाथ बिक रही है। चलो ये लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये जुमला, इधर ऐड कर लेते हैं अपने, हो गया ये किताब हाथों हाथ बिक रही है, ठीक है, ये किताब हाथों हाथ बिक रही है, रही और है ये बता रहा है हमें कॉन्टिन्यूअस के अंदर। दिस बुक, ये किताब, इसका मतलब क्या आ गया, दिस बुक इज, बिकने को क्या कहते हैं, सेल, दिस बुक इज सेलिंग, हाथों हाथ बिकना ये मुहावरा है, ईडीएम, इसका अलग से एक पूरा लेक्चर हमने बनाया है, वो आगे अपलोड होगा। लाइक अ हॉट केक, क्या होगा, लाइक अ हॉट केक, इसका मतलब क्या होता है, दिस बुक इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक, हाथों हाथ बिकना लाइक अ हॉट केक। ईडीएम से पूरा एक लेक्चर करने रिकॉर्ड किया हुआ है आपके लिए, वो इंशाल्लाह जल्दी 1 से 2 लेक्चर्स के ईडीएम्स होते हैं, कैसे कैसे यूज करेंगे, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग अस टू डेवलप अ vocabulary बिल्डिंग, तो किस तरह से vocabulary बिल्डिंग डेवलप होती है हमारी इसकी मदद से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर होती है बात। चलो भाई 1 मिनट का पॉज इसीलिए दिया था कि आप भी ब्रेक ले लें, हमारा तो रोजा चल रहा है अभी, तो रोजे में तो ब्रेक सिर्फ यही हो सकती है बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगला टॉपिक हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या था, मेकिंग अ नेगेटिव ऑफ अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जल्दी से नेगेटिव बनाना सीख लेते हैं। अफर्मेटिव था, फार्मूला मुझे बता दो क्या बनेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो अपने आप को खुद एक थप्पड़ लगा लीजिए मेरी तरफ से इखलाकन ईदी के तौर पे। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी, ठीक है, बाकी फार्मूला मैं कॉपी कर रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और साथ में क्या है, अदर वर्ड्स है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या लगा देंगे, नेगेटिव आएगा तो नॉट लगा देंगे, बस खत्म हो गई बात, बन गया नेगेटिव। कोई मुश्किल काम था, इतनी आसानी से बन जाता है नेगेटिव, सही है। तो सारा फार्मूला वही है जो अफर्मेटिव का है, लेकिन नेगेटिव ऑफ अ प्रेजेंट में क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सिर्फ नॉट लगा देना। चलो रिकैप करते हैं, इसका नेगेटिव बताना, वो खांस नहीं रहा है, ही इज नॉट कफिंग, वो खांस नहीं रहा है, ठीक है, वो वर्जिश नहीं कर रहे हैं, हम वर्जिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग। अच्छा, आगे जिम में भी लिखा था तो उसको भी ऐड कर दीजिए, इन जिम, ठीक है, जिम के अंदर जो है, ये जिम मत लिख देना भाई, अली बाबा 40 वाला दिन ना लिख देना, जिम लिखना है, ठीक है। वी आर टेकिंग एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करें, वी आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। याद रखो, निगेट करने के लिए हमेशा वी यूज, अगर दो हेल्प, मैं रूल बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस वर्ब की फॉर्म व्हाटएवर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमेशा 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट लगेगा, याद रहेगी ये बात। और दूसरा ये कि अगर एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब है तो नॉट हमेशा उनके दरमियान लगेगा। कितना इजी कर दिया, अगर एक हेल्पिंग वर्ब और नॉट है तो, सॉरी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब है तो बीच में नॉट लगेगा, 2 हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ लगाना है, हमेशा 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लगाना है। आई हैव नॉट बीन, है ना, आसानी से हो जाएगा ये काम। आगे आएंगे एग्जांपल्स तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इस रूल को हजम कर लो, डाइजेस्ट कर लो, तो इजी हो गया इन दोनों का। इन सबके भी नेगेटिव बना डालते हैं, लगे यार वो गेंद नहीं फेंक रहा था, क्या करेंगे भाई, हम क्या करें, गेंद नहीं फेंक रहा, हमें तो नेगेटिव बना रहे, तो यहाँ लगा दो नॉट, यहाँ नहीं लगेगा, कहाँ, यहाँ लगा दो, नहीं, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो भाई,
he is not throwing the ball, milk is not boiling over, boiling over उबलने को कहते हैं, बताया था नहीं वोकैबुलरी, लिख लीजिएगा अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में, boiling over not, it is not drizzling, याद हो गया, अब तो आसान हो गया ना, father is not reading, he is not shivering, this book is not selling like a hot cake, है ना, ये बुक हाथों हाथ नहीं बिक रही, बड़ी मुश्किल हो गई इसको बेचना, तो यहाँ पे ये काम आ गया, जो दो तीन छोड़े थे नेगेटिव के वो भी बना लेते हैं। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, रहे और हैं ये दोनों चीजें देख ली हमने, जैसे ही हमने ये दोनों चीजें देखी हमें हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए एकदम से कि भैया दिस इज फ्रॉम द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और चूंकि नहीं आ रहा है तो नेगेटिव का बनेगा, फौरन से ले आइए। लड़के, लड़के को क्या कहोगे भाई, बहुत सारे लड़के हैं, बॉयज, और बॉयज आ गए तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, और नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है नॉट, बॉयज आर नॉट, पतंग उड़ाने को क्या कहते हैं, फ्लाइंग द काइट, नॉट फ्लाइंग द काइट, सिंगल काइट है तो काइट हो गया, अगर पतंगे नहीं उड़ा रहे तो एस लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो ये बॉयज आर नॉट फ्लाइंग द काइट। और कौन सा रह गया है, वो सर्दी से कांपना, ये तो हो गया, हम सब्जियां नहीं खरीद रहे भाई, तो गोश्त खरीद रहे हैं हम, अगर सब्जियां नहीं खरीद रहे, लेकिन बहरहाल इसकी इंग्लिश बनाकर क्या बनाएगा इसका भाई, हम सब्जियां नहीं खरीदे, हम का मतलब वी, और वी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर, और नहीं आ रहा है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, रूल याद है आपको बिल्कुल अच्छे से, नहीं याद है तो दो तीन बार सुनोगे तो रूल याद हो जाएगा। वी आर नॉट, क्या हो गया, खरीद रहे हैं, वी आर नॉट बाइंग, खरीदने को क्या कहते हैं, वी आर नॉट बाइंग, आईएनजी क्यों लगेगा, क्योंकि ये रहे हैं वाला है, वी आर नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स, वी आर नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स। सही होगी बात, ये बन गए आसानी से जुमले। ये आपका काम था, हमने आज कोशिश की है कि इस एक टेंस के अंदर दो दो टेंस हम कवर कर लें या दो दो पोर्शंस कवर कर लें। वी हैव कवर्ड द मेकिंग अफर्मेटिव ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एज वेल एज द नेगेटिव ऑफ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ इट इज अ टर्न, जो सबसे मुश्किल सबसे बुरी लगता है आपको बात, वो बात अब होने वाली है। क्या होने वाला है, होमवर्क आने वाला है। चलो होमवर्क देखते हैं। ओके भाई, होमवर्क का टाइम है। ये आपके सामने एक बार फिर फार्मूला, अब ये फार्मूले पढ़ने में आ रहे होंगे आपके सामने बहुत आसानी से। अब इसके होमवर्क देख लेते हैं, बहुत वो भी आसानी से देखिएगा, मुश्किल से ना देखिएगा भाई, क्योंकि मुश्किल काम जो है वो नुकसान का होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके पास आगे सेंटेंसेस, मैं ख़त लिख रहा हूँ, बिल्कुल जूम कर दिया है मैंने स्लाइड को, तो आप आराम से देख सकते हैं मैं ख़त लिख रहा हूँ, वर्जिश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह कोई होती है तो बोल जो रहा हूँ वो भी सुनते जाया कीजिएगा। अब्बा जान अखबार पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, वो सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है, वो बाज़ार जा रहे हैं। बिल्कुल ईजी रखिए, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस। तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, बच्चे मुस्करा रहे हैं, हम ईद मना रहे हैं। चले जी, ईद मुबारक। रमज़ान के बाद ईद ही मनानी है हमने। ये था हमारे पास अफर्मेटिव के। अब अफर्मेटिव के बाद हम चलते हैं, किस में चलें? अफर्मेटिव के बाद किस में चलना है भाई? अफर्मेटिव के बाद आगे चलो ना। अफर्मेटिव के बाद चलेंगे हम कॉन्टीन्यूअस के नेगेटिव के अंदर। तो ये भी आपके सामने आ गया कॉन्टीन्यूअस का नेगेटिव। ये देखिए, मैं ख़त नहीं लिखा, उन्हीं को हमने नहीं लगा के ऐड कर दिया। आप चाहें तो मज़ीद कितने भी जुमले हो सकते हैं, और कुछ दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस भी बना कर अपलोड करें, तो उसके साथ भी होगा। पहले ही एक बार लेक्चर सीरीज़ रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा है, असलम अखबार नहीं पढ़ रहा है, वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहा है, सूरज मशरक़ से तुलू नहीं हो रहा है, तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो, बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे, और हम ईद नहीं मना रहे क्योंकि आज रोज़ा है, ईद बाद में मनाएंगे। सही होगी बात। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं बेटा, इसको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है, और फाइनली आपने इन स्लाइड्स को भी अच्छे से पढ़ के काम को थ्रू करते जाना है। समझ में आ रही बात? ये आपके सामने सबसे पहले वाला देखिए, तो ये सबसे पहला वाला नज़र आ रहा है। इस पहले वाले में हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, फिर नेगेटिव भी आज हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगले में हमारे पास ये क्वेश्चन वाले की बारी आएगी और इंटेरो नेगेटिव की बारी आएगी, जिसमें हम सारे WH और H वाले कवर भी करते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। पढ़ोगे तो मुस्कुराओगे, दूसरों को अपने ऊपर मुस्कुराने का मौका ना दो। ये आखिरी बात थी आज के लेक्चर की। अल्लाह हाफ़िज़।